روحانی دعائیں پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کے جو رشتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ان کی شادی ہو اور بہترین زندگی انہیں ملے۔ جب موقع آتا ہے رشتوں کو ڈھونڈنے کا، کہیں رشتے مل جاتے ہیں لیکن رشتوں میں کبھی رکاوٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں رکاوٹ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اگر اچھا رشتہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جم جائے، یہ رشتہ جڑ جائے، اور اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ رشتوں میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا اہم دعائیں ہیں، اس سلسلے میں آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان عالم دین ہیں، آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مولانا مفتی سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب، www.ziaislamic.com۔ محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رشتوں کی جب بھی بات آتی ہے بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، اور ہر دو طرف کے لیے لڑکے والے بھی چاہتے ہیں کہ اچھی لڑکی مل جائے، عادات و اطوار سے بھی مزین ہو اور اخلاق اچھے ہوں، اور لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکا نان و نفقے کے ساتھ ساتھ اچھے خاندان سے ہو۔ پھر کبھی رکاوٹیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے دین نے رشتوں کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگر رشتوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کے لیے اہم کیا دعائیں اس پر آئیں گے، کیا حکم فرمایا گیا ہے رشتوں کے لیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين الأفضلين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں یہ ہدایت اپنے بندوں کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی وساطت سے عطا فرمائی، اور اس میں اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا رشتوں کی بات کے حوالے سے، کہ فرمایا اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون پا سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی کو ودیعت فرما دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیا کرتے ہیں۔ تو اس میں ناظرین اللہ پاک نے رشتوں کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا، تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ نے بے جوڑ کسی کو نہیں بنایا، ہر ایک کے لیے اللہ نے جوڑے بنائے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے۔ تو کوئی لڑکی جب پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی خاوند بھی ہے، جو اس کا خاوند بنے گا کوئی نہ کوئی اس کا جوڑا ہے۔ لڑکے کے لیے جیسا ہے لڑکی کے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ تو یہ تو قدرتی نظام ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے ہمیں جن رکاوٹوں سے اور پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے انتخاب کے طور پر جب ہم غور کریں تو اس میں شریعت اسلامیہ کے اصول کو پیش نظر رکھیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں رشتوں کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہے، ایک اس میں سے روایت ہے جامع ترمذی شریف میں، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام نکاح کا بھیجے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو کوئی اور جہت سے کسی اور زاویے سے تم مزید کچھ ٹال مٹول کرنے کی کوشش نہ کرو، نکاح کرا دو اس کا۔ تمہاری بیٹی سے، بہن سے یا تمہاری عزیزہ سے رشتے کے لیے کوئی ایسا پیغام آیا ہے کہ جس کی دینداری سے تم مطمئن ہو، اس کے اخلاق و کردار سے تم مطمئن ہو، تو نکاح کراؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے بھی ہوں گے اور بڑے بڑے فساد بھی رونما ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے انتخاب کے حوالے سے لڑکی کی بات کی تو یہ ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے شادی چار وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, या तो दौलत की बुनियाद पर, या उसके हुस्न व जमाल की बुनियाद पर, या उसकी ख़ानदानी वजाहत की बुनियाद पर, या उसकी दीनदारी की बुनियाद पर। फ़र बिज़ाति दीन, मगर फरमाया दीनदार जो है उसको तुम तरजीह दो। तरीबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों, खुदा तुम पर रहम करे, तुम दीनदारी को तरजीह दो। तो ये नबवी हिदायत है, इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में मलहूज़ रखें तो इसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह पाएंगे। मज़ीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम करेंगे। जी नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। रिश्तों में रुकावट के तदारक के लिए अहम दुआओं के सिलसिले में रहनुमाई की जा रही है। आज की इस बज़्म में पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम समीर खान है, मैं पूना से बोल रहा हूँ जनाब। जी समीर भाई, क्या कहेंगे? ये हमारे जो एक साली है उनके 2 बच्चे हैं, अभी शादी के इसी में है, तो कोई अच्छे रिश्ते आने के लिए कोई दुआ बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब गुफ्तगू कर रहे थे, रिश्तों में जो रुकावट आती है, क्या ये जानबूझकर किसी तरह से जादू टोना भी होता है, और जो है कुछ जो स्पियत होती है ज़ाती तौर पर जो आपस में रिश्तेदारों में, इसको दूर करने के लिए क्या कहा गया है? पहली बात तो ये है कि रुकावटें सिर्फ जादू टोने की बुनियाद पर या किसी के कुछ कराने की बुनियाद पर नहीं होती है। एक बड़ा हमारे समाज के अज़हान में ख्याल रहता है कि किसी ने कुछ करा दिया होगा जिसकी वजह से रुकावट आई है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब के दर्जे में तो बहुत सी बातें रखी हैं, लेकिन असबाब में इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है कि मुसब्बिबुल असबाब के फ़ैसले को वो रोक सके। अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल तवक्कुल एतमाद हो, ईमान में क़ुव्वत हो, और फ़ाइल हकीकी रब्बुल आलमीन को माने। हर शय में नफ़ा और ज़रर जो उसने रखा है, वो जो नसीब में है वो तो नफ़ा भी हासिल होगा, ज़रर भी पहुँचेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको न तो कम कर सकती है न बढ़ा सकती है। हाँ, अलबत्ता आजमाइश और इब्तिला अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए रखी है, जो कि उसने अपने कलाम मजीद के ज़रिए से बयान की है। वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तकलीफ़ देकर भी तुम्हें आज़माते हैं, राहत देकर भी आज़माते हैं। तो यहाँ खैर और शर दोनों से भी इंसान को गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ भी आती है, राहत भी आती है। तो हमेशा हम ये ना समझें, कभी होता है ऐसा कि किसी ने कुछ कराया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन हम लोग तकरीबन, मैं अगर मुबालगा ना हो तो 90% अज़हान में ही जब भी कुछ ताख़ीर हुई तो समझते हैं कि जी नहीं, कुछ ना कुछ कराया होगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह के कलाम में ये हमें उसने जो बतलाया याद रखें, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। रिश्तों में रुकावटों के बाब में हम बहुत ही दर्दमंदाना अपील करना चाहेंगे ज़िम्मेदारों से, सरपरस्तों से भी, और उन बच्चियों से और बच्चों से भी जिनके रिश्ते होने हैं, कि आप गौर करें। आप इनके उनके बारे में बात करके खामोश बैठेंगे नहीं चलेगा। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना भी तो चाहिए, अपने अमाल का मुहासबा भी तो करना चाहिए। हम बदअमलियों में ज़िंदगी बसर करें, हम खुदावंद क़ुद्दूस के अहकाम को तोड़ दें, क़वानीन की खिलाफ वर्जी करें, फिर उसके बाद अगर कुछ ताख़ीर हो जाए, उसकी आजमाइश हो, अल्लाह पाक अपने बंदों को तकलीफ़ देकर ये चाहता है कि रोएं, गिड़गिड़ाएँ, नदामत के आंसू बहाएँ, अल्लाह की बारगाह में शर्मसार हों, तज़र्रुअ वज़ारी करें। बजाय इसके हम ये कहें कि किसी ने कुछ कराया होगा, तो सारे के सारे हमारे केस में किसी न किसी का नाम आ जाता है। अब उसके बाद हम बदगुमानियों में मुब्तला हो जाते हैं, अपना मुहासबा करने नहीं पाते। जब भी कोई रुकावट महसूस करें तो सबसे पहले देखें कि हमसे क्या कसूर हुआ। अल्लाह पाक ने तो असबाब में सब कुछ रख दिया है, वही करने वाला है, जोड़ा नसीब का बनाया है, ये तो तय है। हम खुदा की कसम खा के भी भैंसियत मोमिन के कह सकते हैं कि जोड़ा पैदा कर दिया, उसने मौजूद है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उसकी वजह क्या है? हमने कुछ ऐसी शर्तें मुकर्रर की हैं जिसकी वजह से रिश्ते नहीं आते। इब्तिदाअन जब रिश्ता आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सतह जो है इससे गिरा हुआ है, मेयार से कम है, फरोतर है, इसको छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, कोई बेहतर चीज़ को अगर रद्द करते हैं तो अल्लाह पाक एक इब्तिला में डालता है। उसके बाद ऐसी ज़िंदगी को हमने देखा है, हमारे मुख्तसर से ज़िंदगी में बहुत से तजर्बात है इस बारे में, कि बाज़ रिश्ते अच्छे आए, लेकिन ये कह कर कि भाई हमको फ़लाँ अंदाज का रिश्ता चाहिए था, हमको ये पसंद नहीं है, छोड़ दिया गया। उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि वो अब
مسلسل رشتے نہیں آنے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جیسا بھی ہو بہرحال ہم آئے تو کر دیں گے. ابتدائی درجے میں جو آیا تھا نیک دیندار اللہ کو جاننے والا خدا کی معرفت رکھنے والا رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور حلال کی روزی کما کر کھلانے والا لیکن ایک معیار اپنا بنایا ہوا تھا اس معیار کے مطابق نہیں اترا نظر انداز کر دیا آزمائش شروع ہوئی. صحیح بات بالکل صحیح بات ہے. یقیناً وہ رشتے جو ابتدائی دور میں ناظرین جب آپ دیکھنے نکلتے ہیں بہتر رشتہ آ جائے تو فوری لبیک کہنا چاہیے آگے بڑھ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے یہی رشتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہو آپس میں اچھے زندگی گزارنے کے لیے. ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. روحانی دعائیں نورمنٹ روحانی دعائیں. روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین گفتگو کر رہے ہیں رشتوں میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے اہم دعائیں. سلسلے میں کالز کا سلسلہ جاری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام آرسن پٹیل ہے. جی بھائی. میں کھنڈالا ڈھاورواڑی سے بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا بتا چاہیں گے؟ رہا جی ایک 6 سال کا بچہ ہے اس کا نام زید ہے ہمارا. کیا نام ہے؟ زید. زید. ٹھیک. ہاں اس کی عمر 10 سال ہے. جی 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 ہاں 10 سال کا بچہ ہے. جی. معاف کرنا. ہاں زید. ہاں سمجھ گئے. کیا سوال کیا ہاں ہے؟ زید نام ہے اس کا. جی اس کا ذہن تو اسکول میں چلتا نہیں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے. ٹھیک تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے نام میں تھوڑا بدلی کرو. ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں ناسک سے ثنا بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا لڑکا ہے 7 سال کا تو پڑھائی میں بالکل بھی دھیان نہیں دیتا ہے. جی اور اگر کرتا بھی تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے. جی اور مجھے ایک ہی لڑکا ہے. اس کے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں ہے. دوا کھانے کا بھی علاج کیا پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ٹھیک 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 ہے بہن. ابھی سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں پونا سے شاہین بول رہی ہوں. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں پہلے تو میں مولانا صاحب کو اپنا سلام عرض کرتی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی جی سوال کریں. جی بہن سوال کریں. ہاں جی ایکچولی مولانا صاحب آپ میرے سب سے فیوریٹ مولانا. مطلب جو آپ تفصیل سے بتاتے ہو وہ سچ میں اتنی بات گہرائی سے آتی ہے ہمارے ذہن میں. تو اس کے لیے اور سوال یہ ہے کہ اگر لڑکے کی عمر سے لڑکی کی عمر زیادہ رہی تو مطلب ہمارے اسلامی نقطۂ نظریے سے اگر نیک ہے اچھی لڑکی ہے تو کر سکتے ہیں کہ مطلب کافی لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں صرف لڑکی بڑی ہونے کی وجہ سے. اگر وہ نیک صالحہ ہے اچھی عادتوں میں ہے پڑھی لکھی ہر چیز میں وہ آگے ہیں صرف یہ نقطے کو دیکھ کر لڑکی کو ریجیکٹ کر دینا یہ کہاں تک درست ہے یہ اس بات کی آپ تفصیل بیان کیجیے. سمجھ گئے. اور بہت شکریہ. میری ایک بہن ہے اس کے لیے ایک اچھے سے رشتے کے لیے وہ کیا وظیفہ کرے یا پھر نمازیں تو پڑھتی ہے ماشاءاللہ سے کون سی دعائیں کرے کہ جس سے اس کو جلد سے جلد اچھا رشتہ ملے. ٹھیک ہے بہن بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سلمان ہے. میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں. جی سلمان بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے پھوپھی صاحب بھائی کی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. جیز ہے نادیہ. ٹھیک ہے ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. جذبے کو سلام آپ کے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اپاہج لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. رشتوں کے لیے سالی کی بچیاں ہیں انہوں نے کہا اور رشتوں کے لیے کوئی دعا بتائیں. قرآن مجید میں سورہ قصص یہ 20ویں پارے میں صورت ہے. اس کی آیت نمبر 24 ہے. اخیر حصہ اس کا خاص طور پر رشتوں کے لیے بڑا مجرب ہے. ان کلمات کے ساتھ پڑھیں. ربی انی
लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ए परवरदिगार, जो भलाई भी तू मुझको अता करे बेशक मैं उसका मोहताज हूँ। तो ये मुबारक कलिमात से जब दुआ करेंगे और इसको बतौर विर्द के 111 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल शामिल हाल होगा, इस राह की हर रुकावट दफ़ा होगी और ज़रूर बेहतर और मुनासिब रिश्ता कायम हो जाएगा। जी, 10 साल का बच्चा है और जैद नाम है। नाम बड़ा प्यारा है। आपने कहा कि नाम बदलने के लिए कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं, वो गलत मशवरा दे रहे हैं। नाम को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुबारक नाम जमात सहाबा में से एक जलील क़द्र सहाबी का था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुबारक नाम का तज़किरा अपने कलाम मजीद कुरान मुक़द्दस में फरमाया। सूरह अहज़ाब में ज़िक्र है, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। तो ज़ैद के कलिमात के साथ उनका नाम कुरान मजीद में आया, उनका तज़किरा कुरान मजीद में हुआ। लिहाजा ज़ैद नाम बड़ा अच्छा है। माना के एतबार से ज़ैद ज़्यादा खूबी रखने वाले को कहते हैं, ज़्यादा भलाई रखने वाले को कहते हैं, ज़्यादा फजीलत रखने वाले को कहते हैं। हर चीज़ में, हर खैर में ज़्यादती, यानी ज़्यादती मतलब कोई तजावुज़ करने की ज़्यादती नहीं, खैर में, भलाई में, नेकी में, अच्छाई में ज़्यादती। तो जिसके माना में ज़्यादती है, तरक्की है, बुलंदी है, उस माना को तर्क करना या उस कलीमे को तर्क करना ये नामुनासिब मशवरा है। सहाबी का नाम वैसे भी बाबरकत है, फिर माना भी उसके बड़े प्यारे हैं और कुरान मजीद में उसका तज़किरा है। हरगिज़ नाम न बदलें। जो कुछ भी रुकावटें हैं वो इफ़हाम तफ़हीम से काम लेने से दूर होती है। बच्चे हैं, इब्तिदा में वो लोग अपने शौक़ का मुज़ाहरा नहीं करते, खेलने को पसंद करते हैं। सोबतों की वजह से वो बशज़ौक़ी का मुज़ाहरा करते हैं। अच्छी सोबतें उनके लिए फ़राहम करें, अच्छे वाक़ियात और क़िस्से सुनाएं जिससे दिलचस्पी उनकी बढ़े, कुछ टाइम निकालें, इफ़हाम तफ़हीम से काम लें, इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेंगे वो। पढ़ाई में बच्चे का जहन नहीं रहता। पढ़ाई में शौक़ और ज़ौक़ के लिए ये आयत मुबारका उनको पढ़वाएँ और ख़ुद भी उनके लिए नियत करके पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार तू मेरे इल्म में ज़्यादा इजाफ़ा फरमा। तो अल्लाह पाक अपना करम करेगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अल्लाह पाक के नामों में अलीम भी है, अल्लाम भी है। इल्म जान के माने जानने वाला, इल्म देने वाला। या अलीमु या अल्लामु, या अलीमु या अल्लामु, अगर ये नियत से पढ़ें कि अल्लाह पाक इल्म की खैरात अता करे तो ज़रूर करम करेगा। एक तस्बीह या अलीमु या अल्लामु का विर्द करें और रब्बी ज़िदनी इल्मा बाकायदा बच्चे को याद दिला दें और दुआ करवाएं, अल्लाह का करम शामिल होगा। मैंने सवाल किया है, लड़की की अगर उम्र ज़्यादा हो जी, उस बात को लेकर लड़के वाले अगर रिश्ता रिजेक्ट कर दें, अच्छा भी रिश्ता हो, जी। तो ऐसी सूरत में क्या अहकाम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत जो क़ियामत तक आने वालों के लिए हर ज़ाविये से रुश्द व हिदायत का पैगाम देती है, वो क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र मुबारक जबकि 25 बरस की थी, निकाह फरमाया तो किस खातून से फरमाया? सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया। और उनकी उम्र मुबारक क्या थी? 40 बरस उनकी उम्र मुबारक थी। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये निकाह एक इत्तेफाकी तौर पर लोगों के तय करने से नहीं हुआ। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कभी अपना निकाह खुद से किया, न अपनी साहिबजादियों में से किसी का निकाह खुद से करवाया, बल्कि जब तक वही इलाही नहीं आई मैंने निकाह किया भी नहीं, निकाह करवाया भी नहीं। तो गोया अल्लाह की वही से निकाह हुआ और अल्लाह ने सबसे पहले हबीब के निकाह के ज़रिए से उम्मत के अज़हान को रोशनी दे दिया कि ए लोगों, दुनिया में ये दस्तूर है कि सुहागन को अभागन बनाते हैं, मगर हमारे हबीब वो हैं कि अभागन को सुहागन बनाते हैं। तो हुजूर ने एक बेवा खातून से निकाह किया और उम्र भी उनकी 40 बरस की थी। ऐन उनफ़ान शबाब में करके उम्मत को तालीम क्या दी कि इस तरह के तसव्वुरात को अपने जहनों से निकालो, और अगर उम्र ज़ायद है लड़की की, लड़के के बिलमुकाबिल लेकिन अखलाक अच्छे हैं, दीनदारी में वो माशाअल्लाह ऊंचा मुकाम रखती है, इल्म से रूशनास है, तरबियत पाई हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेमत समझी जाए। उम्र उसकी ज़ायद होने से कोई ऐसा ऐब की बात नहीं है कि जिसको रिजेक्ट कर दे, नज़रअंदाज कर दे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहतरम। नाज़रीन, आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस जवाब के बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ औरंगाबाद से। जी जावेद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? हमारा बच्चा है फैज बोल के, जी 8 साल का बच्चा है, उसको दिमाग चलता ही नहीं पड़ेगी के अंदर। जी, ठीक ठीक।
अभी आपने दुआ सुनी होगी, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो दुआ का विर्द करेंगे आप रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कौन बात कर रही हैं? जी मैं अफरोज खान बात कर रही हूँ पूना से। जी क्या सवाल करेंगी? जी मेरा सवाल है कि मैं 4 साल से मेरे पेट में दर्द है और मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैंने हर तरह के इलाज भी कराई हूँ मैंने जी हाँ, तो बस आप मुझे कोई वजीफा बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं नाज़रीन। सवालात बहुत से, इंशाल्लाह आकर वक्फे के बाद आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रूहानी दुआएं। नूरमन रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंजो गम और मुसीबत के वक्त की दुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में अजर दे और इसके एवज मुझे इससे अच्छा बदल इनायत फरमा। तू ही मुहयी व मुमीत। रूहानी दुआएं में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है नाज़रीन। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। मुफ्ती साहब, पाहिज लड़की से शादी करना चाहते हैं, कैसा? यकीनन जो बेसहारा है उसके लिए सहारा बनना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका सिला अता फरमाए। यकीनन एक अच्छा इक़दाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ जलीला के बारे में हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिन कलिमात का तज़किरा किया था, मिन जुमला उन कलिमात एक ये भी था, व तहमिलुल कल, कि जो दूसरों के लिए बोझ बने हुए हैं आप उनके बोझ को भी उठाते हैं, उनके लिए भी आप मदद फरमाते हैं। यकीनन अच्छा इक़दाम है, बहुत मुबारक है। बहुत शुक्रिया। बहन ने कहा है पेट में दर्द रहता है। पेट में तकलीफ़ की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूरतुल फातिहा शरीफ को 7 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें और पिएँ, और अपना हाथ पेट पर रखकर आप पढ़ें और हाथ फेरते हुए आप पढ़ते जाएं, फिर फूंक लें। अल्लाह पाक फजल फरमाएगा, शिफा ज़रूर नसीब होगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? नूर बात कर रहा हूँ बल्लारी से। जी नूर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? तब मेरे को घबराहट होती है, बहुत डर होता है। जी। डॉक्टर के पास गया तो खाली नींद के गोलियां देते। जी। क्या करना? ठीक है, ठीक। मेडिकल स्टोर वाले बोलते नहीं खाना। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। भी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब, रिश्तों के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ी ज़माना जिस तरह के हालात हैं, हम इंटरनेट के थ्रू जो है रिश्तों की तलाश भी करते हैं और रिश्ते जुड़ रहे हैं इसके ज़रिए से। किसी शहर में अलग शहर में हैं और किसी अलग मुल्क में हैं, ऐसा भी हो रहा है। जी। ऐसी सूरत में देखा नहीं जाता, ख़ानदान का सही तौर पर पता नहीं लग पाता, सिर्फ स्टेटस का पता चल जाता है, क्या मसरूफियात हैं, बस इस बुनियाद पर भी रिश्ते हो रहे हैं। इस बारे में इंटरनेट के ज़रिए से तलाश किए जाने वाले रिश्ते, यकीनन वो बहुत से रिश्ते हम गालिब गुमान यही रखते हैं कि बेहतर ही होते होंगे। क्या दीनी एतबार से ये जो ज़रिया अपनाया गया है, इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, रिश्तों के सिलसिले में खा दो बदू मामला किया जाए या इंटरनेट के थ्रू इसमें इंतखाब की कोशिश की जाए, दोनों में भी मलहूज़ ये रखना चाहिए कि शरई हुदूद कायम रहें
حدود شریعت سے تجاوز نہ ہونے پائے. لڑکی کو جہاں تک دیکھنے کی بات ہے اس کے تمام امور کو اس کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے یہ ساری باتوں کو دیکھا نہیں جائے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ تم دیکھ لیا کرو جس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو, اس سے تمہارے درمیان محبت قائم رہ سکے گی. لیکن آج جو دیکھنے کے طریقے بن گئے ہیں, خواہ وہ دو بدو دیکھا جائے یا فوٹوز کو منگوا کر دیکھا جائے یا نیٹ کے ذریعے سے دیکھا جائے, اور خاص طور پر نیٹ کے ذریعے سے دیکھنے میں اس کی بہت غلط تصویر سامنے آنے لگی, بے حیائیوں کے چوپٹ دروازے بھی کھلنے لگے اور اس میں بہت سے مغالطے بھی ہونے لگے اور دھوکے بھی ہونے لگے. تو لہٰذا اس میں شرعی حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو دیکھنا ہے اسی کو دیکھا جائے, باقی اس کو اس کے بدن کے ان حصوں کو جس کی نمائش کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ ہرگز اس کی نمائش نہیں کروائی جا سکتی. بہت سے نادان نادانی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ چلو جس سے رشتہ ہو رہا ہے ہم اسی کو بتا رہے ہیں, اپنے جسم سے بہت مقامات سے بے ستری اور بے حجابی کا بھی معاملات کر رہے ہیں, یہ سنتے ہیں ہم لوگ. ہمارا تو مشاہدہ نہیں ہے لیکن کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو حرام ہے, ناجائز ہے. مکمل شریعت میں جو اس کے لیے ستر کا قانون دیا گیا اس کی رعایت ہو, چہرے کو اس کا دیکھا جائے ٹھیک ہے, باقی معلومات حاصل کر لینا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس دیکھنے میں جو اور مزید جو دیکھنے تک پہنچ رہے ہیں جس سے بے حیائیوں کے دروازے کھل رہے ہیں, اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے, ہمارے سماج کو محفوظ رکھے. وہ تجاوز حد اسلامی سے کرنا جائز کبھی بھی نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. ناظرین, ایک بہتر رشتے کے لیے انٹرنیٹ کا اگر آپ سہارا لے رہے ہیں تو بہت پیاری بات ہے, لیکن اگر اس کے ذریعے سے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے تو یہ بری بات ہے. یقیناً اپنی آنکھوں کو بری بدنگاہی سے بچانے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں کل کے دن, جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو, تو کیا وہی آنکھیں ہیں یہ جو گناہوں میں مبتلا رہیں دنیا میں, جن آنکھوں نے بری چیزوں کا دیدار کیا, اس کی خواہش کی؟ یقیناً اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ وہ دیدار جو ہمیں آخرت میں کرنا ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو جی, میں نظام آباد سے محمد عمر خان بات کر رہا ہوں. جی عمر خان صاحب, کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ رات میں جب سونے کے دوران جو ہے جی خوابیں اتنی بری بری گرتے ہیں اور جو ہے نا جی رات میں جو ہے نا کوئی شیطانی جو ہے نا اوپر سے آ کے رہا بول کے جو ہے نا ڈرواتی ہے, اور جو ہے نا اونچائی پہ سے گر رہے سے خواب گرتے ہیں, اور جو ہے نا نیند میں ایک دم جو ہے نا چیخ مار کے اٹھ جاتا ہوں, اور نیند میں جو ہے نیند جو ہے نا 2 بجے 3 بجے کے درمیان آنکھ کھل جاتی ہے, پھر صبح تک جو ہے نا نیند کا جو ہے آنے کا نیند جو ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا, سمجھ گئے ہم آپ کے سوال کو. آئیے ناظرین, ایک اور کالر پروگرام میں شامل کریں ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد گڈو ہے. جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ دلی سے. جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرے لڑکے کا نام دلی سے بول رہا ہوں میں, اور میرے لڑکے کا نام محمد تنس ہے. اس کے بارے میں معنی پتہ کرنا ہے مجھے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی مفتی صاحب سے بات کرنے کا ہے میرے کو. جی بات کیجئے. جی جی پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو. جی جی سوال پوچھیں. جی 2 سال سے کوشش کر رہی ہوں, میں گھر میں بھی کرا سب دیکھ رہے چلے جا رہے لوگ, کچھ وظیفہ ہونا میرے پڑھنے کے لیے, جلدی ہوئے ویسا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. آئیے مفتی صاحب, جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کروں گا. جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا, ہمارے بھائی کا پیٹ میں درد ہے, میں اس واسطے جی بات کرنا ہے. ٹھیک ہے.
बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। भाई ने इस मुफ्ती साहब जो सवालात हैं उनको शामिल करेंगे। वक्फे का वक्त है इस वक्त। नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, सारे सवालात भी इंशाअल्लाह इनके जवाबात लेंगे एक वक्फे के बाद। रूहानी दुआएं। नूरमेंट रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी हो तो ये दुआ पढ़िए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से हूँ। तू ही मुहय्यी व मुमीत। रूहानी दुआ में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, सवालात बहुत से हैं, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। भाई ने सवाल किया था पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह सेहत व शिफा मिलेगी। और एक दुआ भी है, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजीदु। 3 मरतबा या 7 मरतबा पेट पर हाथ फेरते हुए पढ़ लें, या कहीं भी जहाँ भी दर्द हो, किसी भी दर्द के सिलसिले में ये दुआ हदीस मुबारक की दुआ है, बहुत बड़ा इसमें असर है। घबराहट होती है भाई ने कहा। सूरह कुरैश लिइलाफि कुरैश जो है उसको पढ़ें, और ख़ास तौर पर वो आमनहुम मिन खौफ, वो आमनहुम मिन खौफ, इस जो है मुक़द्दस हिस्से को 3 मरतबा पढ़ लें, अमन में रहेंगे, खौफ और परेशानी दफ़ा होगी। ठीक। भाई ने सवाल किया है नींद के दौरान जो है ख्वाब, बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। जब कभी बिस्तर पर जाएं तो पहले वज़ू कर लें, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, सूरह फलक सूरह नास पढ़ें, और अलम नशरा की सूरत भी पढ़ लें। बुरे ख्वाब और डरावनी ख्वाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। अगर एक बैक आँख खुल जाए और इस तरह फ़िक्र महसूस करें तो बाएं तारीफ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर बाएं जानिब 3 मरतबा पढ़कर हर मरतबा करके थोड़ा थूकें का मतलब यानी कोई थूक मुँह से किसी पर गिरने ना पाए, खाली थू इस तरह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर थूकें, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर थूकें, फिर तीसरी मरतबा ऐसे ही करें, फिर अपनी जो करवट है उसको बदल दें, सीधी करवट पर सो जाएं, थोड़ा सा हट के सो जाएं, इंशाअल्लाह फिर कभी आप इस तरह बुरे ख्वाबों के सिलसिले में परेशान नहीं रहेंगे। ठीक। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाज़रीन देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हज़रत। जी भाई। मैं सैयद यूसुफ बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी भाई। अच्छा, हमें शादी होके 10 साल है, तो अभी तक क्या है तो बच्चे के वास्ते क्या है तो बहुत सारे इलाज अंगरे बहुत डेवलपती से भी ये कर लगता है क्या, अभी तो अभी तक क्या भी कामयाबी नहीं मिली, 2-3 बार मिसकैरेज होगा क्या, और दूसरे क्या है तो कोई काम होता है, काम के इसमें परेशानी, हर एक इसमें मायूसी, ठीक, खाली एक जिंदगी से बचते हमें दोनों में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ। जी शाह साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी वो ये पता करना था कि बैंक में नौकरी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक, बैंक में नौकरी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अभी आपको बताया जाएगा। आइए नाज़रीन जो सवालात रह गए हैं उनको शामिल करें। बहन ने कहा है घर नहीं बिक पा रहा है। या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर, या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर, ए तमाम कामों को खैर के साथ पूरा करने वाले परवरदिगार, ये उसके माने होते हैं। इसको 111 मरतबा पढ़ें, अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह पाक करम करेगा और ज़रूर बिक जाएगा। जी, भाई ने कहा है कि हमल जो है वो ठहरता नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया है शादी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें अल्लाह पाक से नेक औलाद की दुआ मांगनी है। दूसरा ये कि करार पाने के बाद अगर वो गिर जाता है तो फिर उसके लिए एक आयत मुबारक हम बताएंगे, उसको पढ़ें।
इब्तिदा में तो रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन ये दुआ करते रहें। जब ये महसूस हो जाए कि नुतफ़ा करार पाया है, अब अंदेशा है गिर जाता होगा, तो फिर फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन, फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इसको पढ़ते रहें। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हमने इसको महफूज करारगाह में रख दिया है। तो उस आयत करीमा की बरकत से हमल साक़ित नहीं होगा, महफूज करारगाह में रहेगा, फिर विलादत का वक्त आएगा तो विलादत होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ इसके बाद जुड़ गए। नाज़रीन देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। बैंक में नौकरी करना कैसे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर सूदी मामलात करने पड़ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि सूदी मामलात को करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर सूदी मामला से पाक अगर वहाँ मामलात होते हों तो फिर कोई हरज नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी, मुफ्ती साहब, रिश्तों के बारे में किन चीज़ों का इख्तिसार के साथ बताएं कि ख्याल रखना चाहिए? जैसा आपने इब्तिदा में बताया है, लेकिन एक पैगाम पहुँचे। हाँ, पैगाम के सिलसिले में मैं अर्ज़ कर दूँगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि रिश्तों में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि मुनासिब रिश्ता आए दीन के एतबार से, अखलाक के एतबार से, तो फिर मज़ीद और दीगर उमूर की तहक़ीक़ की वजह से उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मेयार अपना दुनियावी एतबार से ये ना बना लें कि फ़लाँ डिग्री की हामिल होगी तो ही हम उसको अपने लिए जो है बहू के तौर पर मुंतखब करेंगे या उसको अपने घर लाएंगे। और ख़ास तौर पर लड़की वालों से हम ये कहना चाहेंगे कि बच्ची की तालीम की वजह से ये समझ कर कि एक निशाने तक हम पहुँचे, ये सोचे हुए हैं, जब तक वो निशाने पर नहीं पहुँचेगी हम नहीं करेंगे। इस दौरान अगर उसकी गलत आदतें हो और कोई दूसरों से अगर ताल्लुकात कायम हो जाए तो कौन सी ताकत रोकने वाली है, कौन किस तरह से उसको बेहयाई से बचाने वाला है। ऐसे कई केसेस होने वाले हो रहे हैं। शादी के बाद भी, निकाह के बाद तालीम का सिलसिला जारी रखा जा सकता है। लड़के और लड़कों के सिलसिले में जब भी कोई मुनासबत वाले रिश्ते मिलते हों तो ताख़ीर हरगिज़ न करें और दीगर कोई मेयारात को सामने न रखें। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि दुनियावी एतबार से वजाहत ना देखी जाए या खाने वाले पीने वाले हैं, अच्छे रिज़्क़ रोज़ी के असबाब मुहैया हैं, ये ना देखिए, ये सब कुछ देखा करें, लेकिन मरकज़ी तौर पे तवज्जो जिस तरफ होनी चाहिए वो अखलाक है, किरदार है, तालीम याफ्ता होना है, अखलाक अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की जानने वाले होना, जानने वालियाँ होना है। ठीक, आइए एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करें, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी रफीक भाई बोल रहा हूँ। जी रफीक भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरे को पूछना था कि अब्बा का भी 11-12 दिन हुआ इंतकाल हो गया जी, तो अचानक ही अटैक से अच्छे खासे थे, अचानक ही इंतकाल हो गया उनका। जी। तो मेरे को उनसे बात करना था ख्वाब में। ठीक, तो हो सकता है मौलाना साहब? इंशाल्लाह ताला अभी पूछ के बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? उनके लिए आप इसाले सवाब किया करें, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम भी अर्ज़ किया करते थे कि हमारे वालिदा इंतकाल कर गई या कोई अज़ीज़ के हवाले से क्या करना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा पहुँचता हो। तो हज़रत पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि तुम कुआं खुदवाओ, वो पानी जो लोग भी पीते रहेंगे वो सदक़े जारिया होगा, उनके लिए सवाब मिलता रहेगा, या कोई इसी तरह से खैर का काम करो जिससे कि उनको फ़ायदा पहुँचे। आप क्या कीजिए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक उनके लिए दुआएं बख्शिश करते रहिए, उनके लिए कुछ इसाले सवाब करते रहिए। और उन्होंने कुछ वसीयतें की है जो शरई एतबार से नाफिज़ की जा सकती है, तो वो वसीयतों को नाफिज़ कीजिए। और जो वालिद के हवाले से आपके अजीज़ व करीबा बनते हैं, वालिद की खुशी की खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, आप एक नेक फर्मबरदार उनके बेटे करार पाएंगे। अबरा ख्वाब में उनका नज़र आ जाना, अल्लाह पाक अगर चाहेगा तो ज़रूर देख सकेंगे आप। अगर अल्लाह की मशीयत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमारी कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया और प्रोग्राम कामयाब होने में आपने ताउन किया। नाज़रीन, रूहानी दुआएं की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम आपके बेहद मशकूर हैं, आपने 1 घंटा हमारे साथ सवालात के ज़रिए से मालूमात हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया। रूहानी दुआएं की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नूरामेंट पेश कर रहे थे रूहानी दुआएं। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। ताउन किया भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा।